Hello, hi. My name is Miss Ipsa, and today we are taking the topic of acceleration part D. Acceleration is a part of chapter motion. Motion is a part of physics, science. Okay, so that's the hierarchy going on. Now, in this part D of acceleration, we are doing graphical analysis of VT graph. Oh God, sounds very difficult. Yes, I understand. It sounds very difficult. But when we go into the हम बीच में जब जाएंगे ना तो it will be all fine. एनालिसिस का मतलब हम एक एक लेते हैं. ग्राफ मतलब ग्राफ होना पड़ेगा, उसमें कुछ लाइंस वगैरह होंगी और हमें उसके एनालिसिस मतलब हमें उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा. मीन्स देयर विल बी अ ग्राफ और उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा. ओके, वीटी ग्राफ, वो जो ग्राफ होगा उसके एक एक्सिस पे वेलोसिटी होगी, एक एक्सिस पे टाइम होगा, या वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा. स्पीड होगी और टाइम होगा, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू talk about. We have to understand that graph को एनालाइज करके हमें उसके बारे में बताना है. इफ इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ. इसमें वैल्यूज नहीं दी गई होंगी. व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन दिस? देयर विल बी नो वैल्यूज गिवन. लास्ट पार्ट में, सी पार्ट में हमने किया था वेयर द ग्राफ्स में टाइम की वैल्यूज गिवन थी, 10 seconds 20 seconds लाइक दैट. स्पीड की वैल्यू गिवन थी 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ऑल दैट. बट हियर द स्पेशल केसेस वेयर देयर आर नो वैल्यूज गिवन एंड स्टिल वी हैव टू एक्सप्लेन द मोशन. कि मोशन में ब्रेक लग रहे हैं, कि मोशन में एक्सीलेटर दब रहा है, कि इंसान रुका हुआ है, कि चल रहा है, कि क्या हो रहा है. ठीक है, वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट theoretically. So this is what we are going to do today. Now let's start. अगर हम I make a symbol like, if I make a symbol like this, what will it normally mean? मतलब कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, राइट? कोई भी चीज हो, अगर ग्राफ कोई भी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे या फिर, तो उसका क्या मतलब होता है? वो चीज इंक्रीज हो रही है, राइट? उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. अगर कोई भी लाइन ऐसे जा रही है, इट मीन्स कि वो चीज डिक्रीज हो रही है. अगर ये हाइट है तो भी डिक्रीज हो रही है. अगर ये और क्या ऐसे डिक्रीज होता है? अगर whatever it is, if it is like this, whatever it is, height, whatever slope, it is decreasing. अगर एक लाइन ऐसे है, it's a flat ground, height change नहीं हो रही है, that means no change. जिस भी चीज की हम बात करेंगे उसमें there will be no change. I hope till here it is fine. This is increase in whatever substance, this is decrease in whatever substance, and this is no change in that substance. It's a level flat ground. The height is remaining same. Okay. Then let's revise a bit of this thing. Okay. So directly we come to the VT graph. This is called a VT graph because here it is velocity in meter per second or kilometer per hour, whatever you want, and here it is time, which can be in seconds or it can be in hours or anything that you want, right? Okay, now is this called a graph? No, I have to explain. This is not a graph. These are called axes, x-axis and y-axis. So where is the graph? Right now we don't have a graph. The moment I draw a line like this, any kind of line, I have by chance made a flat line, this thing is known as the graph.
This special line is called the graph, not this and not this. This is called the graph of the graph. Okay, now we know VT graph में VT graph की shape, just remember, the shape of the VT graph tells us about the acceleration. It can be a speed time graph also, as we discussed. It can be a speed time graph. So a VT graph or a speed time graph की shape tells you about acceleration. Okay, shape tells us about acceleration. So we write here as important point, shape of VT graph tells us what? It tells us about acceleration. Okay. Now these are the important things we have jotted down separately. Now I can have a graph like this where the line was straight. Okay. I can also have a graph like this, again a VT graph, where the line is like this, like this line. Okay, I call it graph A, I call it graph B. I can also have, okay, let's just discuss these two graphs. Okay, first we'll discuss these two graphs and then we'll go ahead. अब ये तो टाइम है, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, कभी टाइम वापस होता है, अभी तक रिवर्स टाइम मशीन वट एवर इट इज कॉल्ड, बैक टू टाइम मशीन वो भी बनी नहीं है, तो हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. टाइम वापस नहीं जाता है, वी डोंट गो बैक इन टू पास्ट. टाइम तो हमेशा ही बढ़ता रहता है, तो इसकी तो चिंता ही मत करो आप लोग. वॉट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वेलोसिटी, तो यहाँ पे है speed. This is what the other axis tells. This is also velocity or speed. Now the shape of graph हमें इसमें क्या बता रही है, वो इसके बारे में बता रही है, इसके बारे में नहीं बता रही, कुछ टाइम तो बढ़ना ही है, इसके बारे में ग्राफ की शेप बता रही है. अब ये इस टाइप की हमने क्या कहा था, इस शेप का मतलब होता है नो चेंज, जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहने वाली है, दिस नो चेंज. अब वो जो चीज़ क्या है, in this case the first thing is whatever this is, whatever you want to call it, the speed or the velocity has no change. Why? क्योंकि ये इस टाइप की शेप थी, we have discussed it there. This type का ग्राफ है, that's why there is no change in speed. All right, very good. पर स्पीड है तो there is no change in speed. मतलब 40 की स्पीड है तो 40 की 40 की 40 की 40 ही रह रही है. If the speed is 40, that means this, or there's, we can say that speed remains constant, remains fixed. For example, in this case, we have taken the example of 40 meter per second. तो इसका मतलब हुआ it is not changing, it remaining constant, 40 मीटर पर सेकेंड. ये तो सिनोनिम्स ही हो गए. अब सोचो स्पीड हमारी 40 की 40 रह रही, 40 की 40 रह रही. आई डू दिस ऑल द टाइम, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कीप ऑल दिस स्टफ अवे, सॉरी. सो स्पीड उतनी की उतनी ही रह रही है. कार को इमेजिन करो, अगर स्पीड उतनी की उतनी ही रह रही है, 40 की 40 रह रही है, डू यू थिंक वी आर प्रेसिंग द एक्सेलरेटर? नो. अगर हम एक्सेलरेटर दबाते तो कार फास्ट हो जाती, तेज हो जाती, उसकी स्पीड बढ़ जाती. डू यू थिंक वी आर प्रेसिंग द ब्रेक्स? नो. ब्रेक्स प्रेस कर रहे होते तो द स्पीड वुड हैव गॉन डाउन फ्रॉम 40 to 30 to 20. दैट मीन्स वी आर नीदर अप्लाइंग ब्रेक्स. So no brakes, because it is remaining constant, that means there are no brakes and there is no accelerator. I hope you know what an accelerator is. Scooters वगैरह two wheelers में वो ऐसे ऐसे करके होता है accelerator, और cars में वो नीचे एक pedal होता है जिससे speed बढ़ाते हैं. So there are no brakes, so no accelerator. Now no accelerator से फौरन क्या पता चल गया? No acceleration.
दैट मीन्स अगर मैथ्स में बोलेंगे इस चीज को, एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है. अब 99% बच्चे इसको लिख देंगे द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अरे भाई कहीं एक्सेलरेशन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है. व्हाट यू कैन सी इज ओनली वेलोसिटी और स्पीड. वन ऑफ द थिंग्स, let's just remove this for clarity. We can only see velocity in the question. So what remains constant? How will acceleration come into picture? Velocity is not changing. Velocity is fixed. Velocity fixed का मतलब अब हमें सोचना पड़ेगा. Velocity fixed का मतलब हो जाएगा that we are neither applying brakes nor applying accelerator. No acceleration. That means acceleration will be 0. See, so never call it zero, constant acceleration. This is not constant acceleration. This is what? Constant, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है constant velocity. ठीक है. अब let's describe its motion. ये इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ओके. हम बहुत गंदी डेफिनेशन याद करते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की, एंड आई sincerely request you all to not understand uniform motion. क्या होता है वो कि if the equal distances are covered in some equal amounts of time, then whatever, that is called uniform motion. Please forget it. Do not understand it like that. हम एक छोटे बच्चे की जैसे, like I always say, we'll come back to the basics and understand uniform motion क्या होता है. Let's write what a uniform motion is. क्योंकि हम जानते हुए भी इसकी हम मिस्टेक कर देते हैं. यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन द स्पीड डज नॉट चेंज. दैट इज व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? ऑपोजिट. जिसमें स्पीड चेंज हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सिंपल. अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, या ब्रेक्स नहीं दबा रहे हैं, या एक्सीलेटर नहीं कर रहे हैं, या स्पीड कांस्टेंट रह रही है, दैट विल बी कॉल्ड, हम एक स्पीड पे चले जा रहे हैं 40 40 40 40 40 40, अगर हम उस स्पीड पे चले जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अब इस केस में क्या हुआ? वही सब चीज़ें हो रही हैं. द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो ब्रेक. सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट? So we'll call this motion as uniform motion. That's it. That's what we have to. That's all we have to analyze in a graph like this. There's nothing else. You have to tell about the speed. You have to tell about the acceleration value and what is the motion type. The motion type is it's a uniform motion. जो भी है वो 40 की स्पीड से जाए जा रहा है, चेंज नहीं हो रही है उसकी स्पीड. ओके. नाउ द सेम थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. So let's understand what is happening to velocity. Let's write the headings only first. What is happening to velocity? Are there any brakes or acceleration? Accelerator का यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? And then value of A. एंड देन मोशन का डिस्क्रिप्शन, कि मोशन कैसे होने वाला है, यूनिफॉर्म होने वाला है. दीज आर द 4 हेडिंग्स व्हिच वी टिपिकली हैव टू स्टेट व्हेन इट इज अ वीटी ग्राफ. जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो ये 3-4 चीज़ें हमें बतानी होती हैं उस ग्राफ के बारे में. ठीक है. तो उसकी हेडिंग्स तो हम पहले ही डाल दें कम से कम, फिर उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देंगे. ओके. अब ग्राफ का है. दिस इज नॉट ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस. This is not graph, this is y axis. और उस पर है क्या? उस पर velocity है. ये रहा ग्राफ. This is the graph. और उसकी शेप देखो, ये नीचे जा रहा है. टाइम के हम सोच नहीं रहे, ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है. सी, द ग्राफ इज डिक्रीजिंग. व्हाट इज डिक्रीजिंग? व्हाट इज हियर? है क्या हमारे पास डिक्रीज होने के लिए? टाइम तो डिक्रीज हो नहीं सकता. वी हैव ओनली वेलोसिटी विच कैन डिक्रीज. और कुछ ग्राफ में चौथी चीज तो लिखी नहीं है, वी टी. ये भी मैंने ही लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. ग्राफ इट्स ओनली वी एंड टी रिटन. सो व्हाट इज डिक्रीजिंग?
जब ये शेप डिक्रीज वाली है, so what is decreasing? Only possibility is that this velocity or the speed is decreasing. यही हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? velocity और speed is decreasing. इसका मतलब क्या है? स्पीड कम हो रही है. मे बी यहाँ पे 40 थी, फिर थोड़ी देर बाद 40 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, एंड इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस. That is what it means. Any values. We are not bothered about the values. This is just for explanation कि स्पीड गाड़ी की कम धीरे हो रही जाती है. गाड़ी धीरे होती जा रही है, धीरे होती जा रही है, धीरे होती जा रही है. अच्छा, अभी कब होएगा? गाड़ी धीरे 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 कब होती जाएगी? Obviously, जब brakes अप्लाई होंगे. Whenever we apply brakes, that is the time when the speed will reduce. यहाँ स्पीड कम हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, और you can also say speed is changing. डिक्रीज हो रही है तो मतलब चेंज तो हो रही है ना, 40 से 30 हो रही है, 30 से 20 हो रही है, स्पीड इज चेंजिंग. तो हमने क्या किया है? हमने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं. वी हैव अप्लाइड ब्रेक्स, तो स्पीड कम हो गई. हैव वी यूज्ड एक्सेलरेटर? नो, वी हैवंट यूज्ड एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर यूज करते तो स्पीड बढ़ जाती. तो ब्रेक्स अप्लाई करें, एंड ब्रेक्स इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेटर, isn't it? वो इससे स्पीड बढ़ती है और ब्रेक से स्पीड कम होती है. सो इट इज ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन. ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. ऑपोजिट, इट्स ऑपोजिट ऑफ this. Brakes means opposite of acceleration. That's why we can say it's negative acceleration. Okay, negative acceleration का दूसरा नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रिटार्डेशन. फिर से समझते हैं. नीचे जा रही है, स्पीड कम हो रही है. स्पीड कम हो रही है मतलब हमने ब्रेक्स लगाए. ब्रेक्स मतलब इज ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेटर, मतलब एक्सेलरेटर से उल्टा उल्टा. सो एक्सेलरेशन इन मैथ्स वैल्यूज बिकम्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन इन मैथ. अब मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मोशन की अभी हमने डेफिनेशन क्या समझी है? एक की समझ लो, दूसरे की अपने आप समझ आ जाती है. यूनिफॉर्म मोशन की अभी हमने डेफिनेशन समझे, जब स्पीड सेम रहे, स्पीड ना चेंज हो, ब्रेक्स ना लगे, एक्सीलेटर ना लगे. आई विल ऐड दैट आल्सो. सो स्पीड डज नॉट चेंज, देयर आर नो ब्रेक्स, and there are no accelerator. My God, what a writing! Accelerator. I hope you can read it. तो अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो स्पीड कम हो रही है, ब्रेक्स लग रहे हैं. सी द ब्रेक्स आर देयर. तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज हो रही है, इसमें स्पीड कम हो रही है. इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें ब्रेक्स लग रहे हैं, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन. ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है. जैसे थक जाते हैं तो पहले हम फास्ट भाग रहे हैं, थक जाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर चलने लग जाएंगे, और फिर धीरे लेट ही जाएंगे. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. द स्पीड इज डिक्रीजिंग. ओके, नाउ लेट्स टेक टू मोर ग्राफ्स. Oh, okay. So we can write here, when we had it here, we can just write for, हम लिख लेते हैं तो याद जल्दी होता है. We can say here that the acceleration is 0, and here after all this analysis we can say acceleration is negative. Just a gist of the entire thing. Okay, now we come to two more graphs and then the analysis will be over. Actually तो मैं already आ गई है. Now we are just practicing कि अगर कोई और टाइप का ग्राफ आ जाए तो उसमें भी कैसे लिखना है. Just practice. You have understood how to analyze a VT graph, how to
क्लियरली टेल अबाउट ऑल द थिंग्स. पहले तो हमें कौन कौन सी चीज़ें बतानी होती है VT ग्राफ में. यू हैव टू टेल ओनली 4 थिंग्स. ओके, let it dry up for a second and then I'll make the diagram. What all things do we have to explain in a VT graph? You have to state कि speed को क्या हो रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है. You have to understand brake लग रहा है क्या accelerator लग रहा है. Acceleration है तो पॉजिटिव होगा, अगर ब्रेक्स लग रहे हैं तो नेगेटिव होगा. ओके, देन यू ऑल्सो हैव टू टेल अबाउट मोशन. मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म. दैट्स ऑल वी हैव टू टेल. ओके, सो वी टेक द C केस where the things look like this. Okay. We write the headings first. So what is happening to velocity, what is happening to brakes, and what is happening to accelerator. Then what is happening to acceleration, uska maths conversion, and then about the motion. The 4 things that we have to mention whenever we have a VT graph. शेप से क्या पता चल रहा है? इंक्रीज. देखो, इस शेप का मतलब इंक्रीज. क्या चीज इंक्रीज? Velocity increase. So here we'll say that the speed or the velocity will increase. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शायद पहले 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, उसके बाद 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. द स्पीड इज चेंजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग. देखो, ऊपर जा रहा है ना, स्पीड बढ़ रही है. क्या बढ़ सकता है? स्पीड ही बढ़ सकती है, क्योंकि ग्राफ पे कुछ और लिखा ही नहीं है हमने. अब स्पीड बढ़ रही है, सो दैट मीन्स ब्रेक्स तो नहीं लग सकते. क्या लगा है? एक्सीलेटर हम प्रेस कर रहे हैं, या उसको हम एक्सीलेटर को पुश कर रहे हैं. एक्सेलरेटर को हम पुश कर रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी पॉजिटिव. कुछ भी हो सकती है, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, बट इट इज पॉजिटिव. ओके, स्पीड बढ़ रही है, हमने एक्सीलेटर प्रेस किया हुआ है, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. क्या हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट? क्या हम कह सकते हैं स्पीड कांस्टेंट? नहीं. जो यहाँ लिखा है सिर्फ उसी के बारे में बता सकते हैं. यहाँ ये कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इसमें चेंजेस दिख रहा है. ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. नाउ व्हाट अबाउट द मोशन? मोशन की डेफिनेशन, स्पीड शुड रिमेन सेम, नो एक्सेलरेशन, नो. अब यहाँ तो एक्सेलरेटर भी दब रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, दिट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फिनिश्ड. It's a non-uniform motion. Hope this type of graph is also clear, where the speed increases. Okay. Now we come to the 4th type of graph, which is nothing but a mixture of all these only. There's nothing new in that. It's just a mixture of all these things only. So if I draw this D graph, which is a velocity time graph, pay attention to velocity, and the graph looks like this, then this, then this, then this. Okay, a very complicated graph. I don't know what is happening. So when the graph looks complicated, all you have to do is divide it into parts: AB, BC, CD, DE. It is divided into 4 sections: AB section, BC section, CD section, and DC section, and you have to explain each of them separately. अब हमें उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमने देखा है जब ये VT ग्राफ, वेलोसिटी कम हो रही है, राइट? B ग्राफ जो हमने समझा था. सो हियर इन AB सेक्शन, acceleration is negative and it's a
non-uniform motion. I'm not explaining it again. You can just refer to example B. Oh, was it example B? Now let's look at the section BC. What does it look like? ये जो चीज़ है स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और स्पीड बढ़ रही है तो अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिजेंबल्स द ग्राफ सी, जो अभी हमने एग्जाम्पल सी जो हमने अभी पहले किया था. डन. नाउ वी टेक द सेक्शन CD. Oh, it's a flat ground. There is no change. This is like example A that we did, where the acceleration was 0. There was no positive, no negative. It was a 0 acceleration. The speed is not changing. And it's obviously when the speed is not changing, everything depends on speed. Okay, हर चीज को स्पीड से समझा करो. Speed is not changing. Speed is not changing, so means it becomes a uniform motion. Okay, section DE is going down, which means it resembles example B, where the acceleration is negative and speed कम हो रही है. देखो speed कम हो रही है, decrease हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. यहाँ ब्रेक्स लग रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेटर लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा. नो ब्रेक, नो एक्सेलरेटर. यहाँ पे ब्रेक लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है. यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग टू स्पीड ऑल्सो? चलो भी लेट्स राइट ओनली स्पीड इज डिक्रीजिंग. सेक्शन B, the speed is increasing. Section C, the speed not change, is not changing. And section last नीचे जा रहा है, so again we can say that the speed is decreasing. You analyzed it in 2 minutes. You've analyzed such a complicated graph because you remember in a VT graph or a speed time graph, ऐसे वाला is negative A, ये वाला is positive A, this is A is equal to 0, and this is again A is equal to negative. And then from that, from speed understanding, we can decipher all the 4 points about all the 4 sections. See, हमने each section के बारे में 4 चीजें लिखी. Okay, now we're left with the last thing in this graphical analysis of VT graph. Suppose in one graph only, this is I'm taking graph example E. In one example only, it's again a VT graph only. There is one object which is going like this. Object A, it is going like this, and the object B is going like this. It's not going like this, sorry. The graph is like this, and the graph is like this for 2 different cars. Car A is like this graph, car B is, and then you have to explain. तो वो 4 चीज़ें तो आप एक्सप्लेन कर दोगे. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट. कि ए के बारे में 4 पॉइंट्स, ब्रेक्स है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज व्हाटएवर. बट नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर, द स्पेशल थिंग हियर इज कंपेयर ए एंड बी. Speed and their accelerations. Compare which one has more, which car has more speed, which car has more acceleration. Okay, now let's not even compare speeds. Let's compare only acceleration. We'll compare. ठीक है. अब again you can just understand from there only. There is a pahad, there is a hill which looks like this, and there is a hill
which looks like this. इसमें ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है हाइट कि इसमें ज़्यादा तेज़ी? इसमें तो फटाफट हम 500 मीटर चढ़ गए, टक 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 टक, वी रीच्ड वेरी हाई. बट इधर से वी आर गोइंग स्लोली 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 एंड रीचिंग अ वेरी स्मॉल हाइट. सी, द हाइट रीच्ड इज वेरी स्मॉल. So here can we say that the large so here because the speed in बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई. इट्स अ वीटी ग्राफ, इट्स अ वीटी ग्राफ. सी, तो स्पीड बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई है, तो इसका एक्सेलरेशन विल बी हाई. इसका एक्सेलरेशन विल बी हाई. स्पीड बहुत जल्दी से बढ़ रही है और वीटी ग्राफ से हमें पता क्या चलता है, इंटरप्रिटेशन क्या होती है एक्सेलरेशन की. अल्टीमेटली इसमें धीरे 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 चढ़ रहा है छोटे से पहाड़ के जैसे, तो दिस इज लाइक less acceleration and this is like more acceleration. So for this car the acceleration is less acceleration. That is the analysis. Compare accelerations of A and B. So you'll say A का acceleration ज़्यादा है, B का acceleration कम है. Okay. Similarly, if I have a graph like this, now this can be confusing. It's again a VT graph. This is car A, this is car B. कौन सा पहाड़ फटक से नीचे गिर रहा है? ये वाला जल्दी से नीचे गिर रहा है. It is this side of this पहाड़. See? And ये वाला पहाड़ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है. It's this side of the पहाड़. So this becomes less acceleration and this becomes more acceleration. Okay, and very stupid question if I take, it's a VT graph, one body is going like this, other body is going like this, this body A, this is body B. Obviously we know that here A के साथ acceleration is positive क्योंकि वो ऊपर बढ़ रहा है, स्पीड ऊपर बढ़ रही है, एंड बी के साथ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव क्योंकि बी की स्पीड कम हो रही है, 40 से 30 से 20 से 10 जा रही है. इसकी बी की स्पीड देखो, बी की स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया. So that is what we had to understand about. अगर वैल्यूज ना दी हुई हों तो हम कैसे पता चलाएं कि मोशन में हो क्या, चल गया पता. All right, thank you and I hope you understand this.